So good morning everyone. Once again, because today is our second class for digital communication system. So yesterday we had one more class, and over there we have discussed the need for digital modulation techniques, advantages, okay, disadvantages, what are the major differences between analog communication and the digital communication system. Okay, and how to start digital communication systems, and how to proceed topic wise, that also I have mentioned you in your last class. So today's topic is sampling process. Just a minute. Just a minute.
Okay, so let us start gradually. So sampling process, as we have studied in detail in our signal system classes about delta signal, okay, or impulse response. Okay, delta function or the impulse response. Over there, we have studied the definition, properties. Okay, different sort of properties we have studied over there. But in this case, we'll use one particular properties that is nothing but, as you know, del t. If you multiply del t, okay, with any time varying quantity xt, okay, which is continuous in time domain. So if you multiply this continuous time domain signal xt with delta function, okay, listen carefully everyone. Then system after multiplication, result will be x of 0, isn't x of 0? Why it is so? क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये t इक्वल टू 0 में, एट t इक्वल टू 0 में ये एग्जिस्ट करता है. देखने में क्या है ये? ऑलरेडी यू नो ऑल दिस थिंग्स, मैंने तुम्हारा क्लास लिए थे. सो डेल ऑफ t ये हम बोलते हैं, एंड दिस इज एट t इक्वल टू 0, करेक्ट. सो दिस इज t इक्वल टू 0. तो उसके साथ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे. वो क्या है? दिस इज डेल्टा फंक्शन at del t. Okay, now if you shift this one, if you shift this one, so if you shift this one, so ये क्या हो जाएगा? मान लो t naught amount you have shifted, so del of t minus t naught हो जाएगा, as you know. Okay, so del of t minus t, del t था पहले, t naught amount तुम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, तो इसलिए ये हो जाएगा del of t minus t naught, करेक्ट. तो लिसन केयरफुली एवरीवन, दिखने में क्या हो जाएगा ये? तो मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये टी नॉट है, ओके. तो ये टी नॉट है, तो डेल्टा फंक्शन यहाँ पे आ गया, एंड इफ दिस इज नाउ सामने शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन, एंड इट इज नाउ कॉल्ड डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, ओके, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, करेक्ट. तो दैट इज कॉल्ड डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट. नाउ if this shifted delta function, okay, now if this shifted delta function multiplied with the same function which was previously xt, then result क्या होगा? क्या होगा देखो, क्यों नहीं जा रहा है इरेजर? ना देखो क्या हो जाएगा. सो x of t, still x of t is there, with that you are multiplying this shifted delta function, okay. So as you know, if you multiply shifted delta function del of t minus t naught, then ये क्या हो जाएगा? Everybody knows x of t naught means जहां पे तुम्हारा डेल्टा फंक्शन रहेगा उसी जगह में तुम्हारा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. जहां जहां तुम्हारा डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ओके, यहाँ पे एक एक करके हम दिखाया है. सो इफ यू थिंक यू आर हैविंग मल्टीपल डेल्टा फंक्शंस, ओके, t is equal to t naught, then t1, t2, t3, t4. Similarly, इधर भी minus t naught, minus t1, minus t2, minus t3, minus t4. So in that way, that means a train of impulses are there.
तो सिंगल डेल्टा फंक्शन होगा तो ये सिंगल सिंगल वैल्यू तुम्हारा होगा, एक्स ऑफ 0 होगा, एक्स ऑफ टी नॉट होगा, एक्स ऑफ टी माइनस, एक्स ऑफ टी 1 होगा। जैसे मान लो हम क्लियर कर रहे हैं, एक्स ऑफ 0 मिल गया तुमको डेल टी मल्टीप्लाई करने से, एक्स ऑफ टी 1 मिल गया जब यू आर मल्टीप्लाइंग विथ सॉरी टी नॉट, हाँ एक्स ऑफ टी नॉट मिल गया तो जब तुम एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई कर चुके थे ना, मान लो इवन एक्स ऑफ टी इज देयर, ये दो हम लोग खोज चुके हैं, पहले दिखाया था हमको। एक्स टी विथ डेल ऑफ टी माइनस, मान लो टी माइनस तो ये टी नॉट मान लो 2t naught, okay, 2t naught. So if you multiply xt, the same function with del of t minus 2t naught, so definitely ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, x of 2t naught हो जाएगा, clear? Similarly, if you multiply again x of t, listen to I am showing you detail, okay, del of t minus क्या होगा बोलो 3t naught, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ 3t नॉट, तो ये राइट तरफ हो रहा है, सिमिलरली लेफ्ट तरफ भी होगा, क्या होगा x ऑफ माइनस टी नॉट, x ऑफ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे डेल ऑफ t प्लस 2t नॉट तो ये हो जाएगा x ऑफ माइनस 2t नॉट, इफ यू मल्टीप्लाई xt विद डेल ऑफ t प्लस 3t नॉट देन इट विल बी x ऑफ माइनस 3t नॉट। सो दैट मीन जो जो पोजीशन में कहाँ कहाँ तुम्हारा डेल्टा फंक्शन है, ओरिजिन में है, टी नॉट पोजीशन में है, 2t नॉट पोजीशन में है, 3t नॉट पोजीशन में है, सिमिलरली लेफ्ट साइड में माइनस टी नॉट, माइनस 2t नॉट, माइनस 3t नॉट, इस तरफ ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक डेल्टा फंक्शन है एंड दे आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ हाउ मच टी नॉट। सो कॉन्जिक्यूटिव दो इम्पल्स रेस्पॉन्स में फर्क कितना है टाइम का, टी नॉट है। सो जो मैंने तुमको बोल चुके हूँ वो हम दिखाएंगे, ओके। सो नाउ आई एम क्लियरिंग इट। सो देखो व्हाट इज द डेल्टा फंक्शन दैट आई हैव शोन यू मैथमेटिकली रिटन, ये ओरिजिन का है, डेल टी है, ये पहला वाला जो है, ठीक है, ये पहला वाला है, टी इक्वल टू क्या है बाबू, ये 0 है। नाउ सेकंड पोजीशन में कहाँ बोला, टी नॉट पोजीशन में है, ठीक है, ये टी नॉट पोजीशन, ये तुम्हारा 2t नॉट, ये 3t नॉट, so in this wise it will move on infinity term, so ये t नॉट, okay, ये 2t नॉट, 3t नॉट and in this way it will move on. So similarly left side में भी होगा, everyone try to understand. So इस तरफ ये जाएगा, ठीक है, from left to right, ये क्या होगा माइनस टी नॉट होगा ऑब्वियसली, ये माइनस 2t नॉट होगा, ये माइनस 3t नॉट होगा, है कि नहीं, ये चलता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इम्पल्स, क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इम्पल्स, है ना। तो ये इनफाइनाइट जो ट्रेन ऑफ इम्पल्स है इसको हम डेल टी एस, और ये देखो ये जो गैप है, देखो ये जो गैप बिटवीन दिस टू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, सिमिलरली इधर भी, ठीक है, between any two how much is the time gap, can you tell me, anyone please tell me what is the gap, what is the gap between any two time gap actually between any two delta function, टी नॉट का t naught, तो t
टी नॉट है, तो ये डेल टी है, डेल टी, और इसको क्या नाम दोगे तुम? डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। इसको क्या नाम दोगे तुम? डेल ऑफ टी माइनस टू टी नॉट। इसको क्या नाम दोगे तुम? डेल ऑफ टी माइनस थ्री टी नॉट। इसको क्या नाम दोगे तुम? डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट। इसको क्या नाम दोगे? इंडिविजुअली कंसीडर करोगे तो इसको क्या नाम दोगे? डेल ऑफ टी प्लस टू टी नॉट। इसको क्या नाम दोगे? डेल ऑफ टी प्लस थ्री टी नॉट। तो इन दिस वे इट विल गो। यहाँ पे इंडिविजुअल तो नहीं है, बदले में बहुत सारा डेल्टा फंक्शन है, लार्ज नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। सो इसको वो पूरा का हम एक नाम देते हैं यहाँ पे। नाम देखो, ये टी नॉट है, टी नॉट को हम चेंज करके अभी हम टी एस भी बोल सकते हैं, टी एस। ठीक है, जो भी तुम्हारा मन है। हम सैम्पलिंग में घुस रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए सैम्पलिंग, एस फॉर सैम्पलिंग है, तो टी नॉट को हम अभी से टी एस कहेंगे, है ना? तो टी एस कहेंगे। सो दैट मीन्स एनी टू कंजिक्यूटिव डेल्टा फंक्शन में फर्क कितना है टाइम का? टी एस गैप। सो इसलिए ये पूरा का पूरा डेल्टा फंक्शन को हम लिखेंगे डेल टी एस टी। ओके, सो दैट इज, एंड इसको हम समेशन रूप में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ, देखो, ठीक है, डेल ऑफ टी माइनस, देखो, के टी एस। टी नॉट को हम टी एस लिख दिए हैं, ठीक है। तो तुम कंसीडर करो टी नॉट जहां जहां है वो टी एस है, टी एस, टू टी एस, थ्री टी एस, इस तरफ भी वही होगा। तो टी का वैल्यू डेल ऑफ टी माइनस के टी एस लिख दिया, और लिमिट क्या होगा बोलो? के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो जाएगा, है ना? देखो ना, देखो के का वैल्यू जीरो करोगे तो माइनस से प्लस तक क्या होगा? जीरो भी बीच में आ जाएगा। तो के का वैल्यू जब जीरो होगा तो डेल टी हो जाएगा। तो ये आ गया, ये आ गया। लिसन केयरफुली एवरीवन। अच्छा, के का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? डेल ऑफ टी माइनस टी एस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू 2 होगा तो टी ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टू टी एस, ये आ जाएगा, 3 टी एस ये जाएगा पास। सो सिक्वेंशियली। सिमिलरली के का वैल्यू जब नेगेटिव कंसीडर करोगे, के का वैल्यू जब -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? टी ऑफ डेल ऑफ टी प्लस टी एस, मीन्स ये हो जाएगा डेल ऑफ टी प्लस टू टी एस, ये हो जाएगा, हाँ, डेल ऑफ टी प्लस टू टी एस, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है फॉर्मूला, ये इनफाइनाइट ट्रेन ऑफ इम्पल्स को हम इस तरफ लिख सकते हैं। तुम चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, वीडियो तो रहेगा। तो तुम लोग देख पा रहे हैं ना ये व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ओके, थैंक यू। तो ये है तुम्हारा इनफाइनाइट ट्रेन जो इम्पल्स होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे सिग्नल सिस्टम में, तब भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जंप होने से नहीं होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लास। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सैम्पलिंग करने के लिए तुम्हारा क्या चाहिए? तुम लोग जानते हो, we need one message signal xt which to be sampled, and along with we need one infinite train of impulse, क्योंकि हम जानते हैं if time varying quantity which is continuous in time, if that multiplied with the delta function, then it would be discrete in time. So if it is del t only alone is there, so it will be x0. if del of shifted delta function individual रहेगा, so x of ts होगा, x of 2ts होगा, x of 3ts होगा। जब तुम मल्टीप्लाई एक साथ में करोगे, तो सिग्नल का पूरा फॉर्मेट रहेगा, लेकिन डॉटेड लाइन तरफ रहेगा, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा, बट दैट नॉट बी कंटिन्यूअस, दैट शुड बी डिस्क्रीट इन टाइम। So that we want to show you. So that is your, okay, so that is your infinite random impulse. Now I'm going to show you how to sample the signal xt with this infinite random impulse.
You remember, keep in mind the type of this infinite term of impulse. That mathematically what I have written here, that is symbolically this. You keep in mind. So now I am clearing it. Now go for sampling process. Okay. मान लो तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस टाइम है xt. ओके, इसको हम क्या नाम दो? xt. जस्ट मिनट. So let us draw the waveform first. Okay, then we'll go for swing sampling process. So only one cycle I am taking. Okay, only one cycle I am taking here. Okay, now see, this is your x of t. Okay, what is that? X of t. That is the continuous signal. Now infinite train of impulse मैंने तुमको दिखा दिया. Now if you multiply that infinite train of impulse here, ठीक है? Okay, from this side to this side. Okay, मान लो this gap should be equal, but there may be some error because I am drawing open hand. Okay, so gap should be equal. Okay, these are the impulses. Okay, that I am showing here. Okay, so these are the actually delta functions. Okay, these are the delta functions. Okay, so that means देखो ये क्या होगा अल्टीमेटली. ये जो डेल्टा फंक्शन है, मान लो ये ओरिजिन है, से फॉर एग्जांपल. ओके, ये ओरिजिन, ये टीएस है, ठीक है. ये 2ts 3ts 4ts इस तरफ ये जाएगा इधर. आई एम नॉट शोइंग यू. इधर क्या ये माइनस टीएस है, देन माइनस 2ts माइनस 3ts जाएगा. सो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपल डिस्टेंस क्या है, सैंपल इंटरवल क्या है, टीएस. तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस एम्पलीट्यूड रहेगा. ये देखो टीएस 2ts 3ts 4ts, तो ये क्या होगा 100 माइनस 4ts होगा ये. सो दिस इज वन सैंपल पॉइंट. दिस वैल्यू रहेगा, दिस एम्पलीट्यूड रहेगा, दिस एम्पलीट्यूड रहेगा, this amplitude will be present, 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 this will be exist here, and this amplitude will be exist here. Okay, so other than these points, the how much points are there? देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8. If you consider one cycle, okay, so that means how many points are there? 8 points are there. So how much the sample points? How much? Sample point. Sample point how much? 8. Okay, so how many sample points are there? 8. So these are called sample values. Okay, so that means the sample value means the amplitude of the signal at this point, amplitude of the signal at this instant, amplitude of the signal at this instant, amplitude of the signal in this instant. So these are basically showing you the amplitude of the signal at particular instant where the delta function exists. So signal basically exists where the positions of the impulse responses. Okay, so that as a whole now, this signal now xt into del of ts हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं इनफाइनाइट टर्म इम्पल्स विथ
xt, that is now called gt. So gt क्या है बाबू? gt हो गया sample signal. Now this as a whole, this signal as a whole is now gt after multiplication with infinite train of impulse. So हम लोग क्या किए हैं? xt, the yellow color was there. Now this infinite train of impulses was multiplied with that xt. Now ultimately what we get, this dotted structure, that is nothing but the sample signal. So this is called the sample signal. Now how many sample points are there? 8. So now you can now imagine how to improve, how to increase the number of sample values, sample points. If you reduce this time gap, isn't? If you reduce this time gap ts, if you make it 1/2 then the previous, so ultimately how many number of sample point will be there? Please tell me. Now ts को तुम हाफ कर चुके हो, ts/2 कर दिया, ts को ts/2 कर दिया, ठीक है। तो सैंपल वैल्यू जा था पहले हाफ कर दिया, तो अभी सैम्पलिंग टाइम को ts को हाफ कर दिए हैं, हाफ ऑफ ts कर दिए हैं तुम, तो कितने तुम्हारा सैंपल वैल्यू मिलेगा? यहाँ पहले 8 मिला था, अभी कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा? गिव मी द आंसर एनीवन। पहले ts था इसलिए 8 नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू मिला वन टाइम पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस, इधर 4 इधर 4, तो सर ज्यादा को मिलेगा सर। ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? पहले 8 था, अभी कितना होगा? टाइम को हाफ कर दिया, मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया है ना। टाइम हाफ मीन्स यस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो सैंपल पॉइंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब वही होता है जो जो पर सेकंड में जो रिपीट होता है वो ज्यादा हो जाएगा। सो दैट मीन्स 8 था, ts करने के ts/2 होगा तो कितने हो जाएगा? 8 इंक्रीज होके कितना होगा बोलो? टाइम तो हाफ कर दिया ना तुम। सोचो, ये तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रेडी है, तो सोचो, सोचने के बाद बोलो। 16 सर। 16 होगा। वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड आंसर। तो 16 हो जाएगा। देखो, मैंने सैम्पलिंग को अच्छे तरीके से तुमको सीखना होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मच टाइम हियर, बिकॉज इन दिस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ना सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग, ये जो 3 पार्ट है ना, ये मेजर रोल प्ले करेगा। ये तुम समझ गया ना, मान लो तुम समझ गए हो सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, कोडिंग, तो तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से तुमको ये सीखना होगा। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला प्रीवियसली जो टाइम पीरियड था, मैंने सैम्पलिंग इंस्टेंस था, उसको मैंने हाफ कर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकल गया ना? नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये जो सिग्नल तुम भेजोगे ट्रांसमीटर से रिसीवर, रिसीवर में आके वो क्या होगा? अच्छा तरीके से तुमको वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा, है कि नहीं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल विल बी बेटर। ओके, तो बाद में हम और कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मुलेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्कशन के लिए। लेकिन अपेरेंटली ये तो मालूम पड़ गया, इफ यू इंक्रीज the number of sample value, okay, so that means the reconstruction of the signal would be much better कहाँ में ना? रिसीवर में। ओके, so that is the case. So that is the case. तो now I am it erase it. ओके, कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। इरेज होने के बाद तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग हम कैसे कर रहे हैं, ओके, तो ये है उसका जवाब, आंसर।
तो मेरे पास क्या था, we have one time varying quantity, that is the message signal. You can say rather we after that we will say xt as a message signal, but in general I am talking about xt here. With that infinite of impulse is multiplied, then we get gt as sample signal. Okay, so I am erasing it. Now think about that. Now I'm going for detailing over there. Now मेरे पास एक सिग्नल है, ओके तो सोचो ये जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी इसका 1 हर्ट्ज है, ठीक है 1 हर्ट्ज है, ठीक है। सैम्पलिंग करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी तुमको दिमाग में रखना है, कुछ रूल्स रेगुलेशन रखना है। वो जो मैंने प्रीवियसली बोला है 8 नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू मिल गया, ठीक टाइम पीरियड हाफ कर दिया, सैम्पलिंग इंस्टेंट को हाफ करने से वो 16 हो गया। तो मिनिमम कितना नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू तुमको लेना है मिनिमम, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है। ओके सो हम लोग वही उस थ्योरम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम। सो आई एम गोइंग टू स्टेट ओवर देयर। सो बिफोर दैट यू कंसीडर, मान लो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज सिग्नल, तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका 1 सेकंड होगा, है ना। t is equal to 1 second, that is time period of the signal is 1 second. now सोचो तुम ts निकालना चाहते हो, तो इफ यू डायरेक्टली मेक 1 by 1, सो को कितना होगा 1 सेकंड होगा ना 1 सेकंड। सो ts 1 सेकंड हो गया, तो ts 1 सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड अंतर अंतर तुम्हारा एक एक करके सैंपल वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कितना सैंपल वैल्यू मिलेगा, 0 से स्टार्ट हुआ 1 सेकंड यहाँ है, तो हाउ मेनी सैंपल पॉइंट तुमको मिलेगा। इफ यू कंसीडर ts इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब सैंपलिंग इंस्टेंट इज 1 सेकंड एंड सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड टाइम पीरियड वाला जो सिग्नल है, सो आई एम टेकिंग सैंपलिंग इंस्टेंट 1 सेकंड, तो इसके लिए तुम्हारा कितना सैंपल वैल्यू मिलेगा, गिव मी द आंसर एनीवन फ्रॉम योर साइड, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट will have for this ts. ts is 1 second here. So as ts is 1 second, how much sample value will be available for this signal? Please give me the answer. Anyone? 1, 2, 3, 4, 5, 6 or nothing? बोलो। अरे भूल होगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेना क्या है, बोलो सोच के बताओ। ts तुम्हारा 1 सेकंड है, तो मैंने क्या बोला, टीएस का मतलब क्या है, सैंपलिंग इंस्टेंट, उसका मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव सैंपल वैल्यू में अंतर कितना होगा 1 सेकंड होगा, है ना। मतलब तो वही है, सैंपल इंस्टेंट का वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, तो टीएस गैप गैप करके तुम्हारा सैंपल वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना सारे तुम्हारा सैंपल वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, देखो जवाब तो देना है, नहीं देने से क्या होगा, हम क्लास में नहीं, हम आगे जा सकते हैं, ये म्यूचुअल डिस्कशन है, भूल होगा तो होगा, लेकिन आंसर तो देना ही होगा ना। सर दो दो, ठीक है, ये Yes, ठीक sir. हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आई 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 विल एक्सप्लेन, ओके ठीक है। तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ, सभी को आंसर देना कोशिश करना चाहिए। इन दिस सेमेस्टर आई विल गो फॉर गिविंग सम क्रेडिट ओवर देयर, जो स्टूडेंट आंसर दोगे ज्यादा, ठीक है, उसका रोल नंबर हम लिखेंगे, वो एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा उसका अंत में, ठीक है ना, मिलना ही चाहिए। अरे आंसर गलत भी हो सकता है, तुम लोग सीखने के लिए तो इधर आ गया ना, तो भूल भी हो सकता है, लेकिन जवाब देना चाहिए, सोच के जवाब देना चाहिए, आर्बिट्रली डोंट गिव द आंसर, सोच के देना है। तो तुम दो बोल चुके हो, लिखो दो गलत आंसर है, क्योंकि 1 सेकंड है, टीएस का मतलब है सैंपलिंग से 1 सेकंड, 1 सेकंड अंतर ही तुम्हारा सैंपल पॉइंट मिलेगा, तो ये 0 से स्टार्ट हुए 1 सेकंड मींस यहाँ पे तुम्हारा
पहला वाला सैंपल वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट में, और तो जाएगा नहीं है क्योंकि सिग्नल ही 1 सेकेंड का है ना, तो सिंगल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो सिंगल पॉइंट, सिंगल सैंपल पॉइंट है, तो सिंगल सैंपल पॉइंट में दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द सिग्नल और रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल वंस अगेन, क्योंकि शुरू ओरिजिन में हुआ है, अंत में हुआ है, यहाँ पे एक सैंपल पॉइंट है, तो क्वाइट डिफिकल्ट टू हैव द सिग्नल वंस अगेन बैक इन द रिसीवर इफ यू सेंड ओनली वन सैंपल वैल्यू, ये क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए मिनिमम तुम्हारा जो मिनिमम सैंपल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा, सर हाँ बोलो। सर टीएस इक्वल टू 1 अपन जो टाइम रहता है वही फॉर्मूला से इसका सैंपल निकलेगा ना सर? हाँ, लेकिन ये जो टीएस 1 अपन होगा उसका उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल है। ठीक है, तो टीएस क्या मैंने किया है, 1/t किया है, सो 1 सेकेंड है, तो 1 Yes. सेकेंड मतलब क्या है, सिंगल सैंपल पॉइंट मिला है। तो सिंगल सैंपल पॉइंट में तुम देखो ना, ये सिग्नल पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, सो क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द सिग्नल, so that means this is not possible to draw the signal or reconstruct the signal once again. so now सोचो तुम 2 पॉइंट कर सकते हो, 1 से नहीं हुआ तो सोचो 2 पॉइंट करने के लिए तुमको क्या होगा, मैंने बोला था तुमको 8 से 16 कर दिए थे, तो तुम क्या किए थे, टाइम सैंपलिंग इंस्टेंट को तुम हाफ कर दिए थे, सर हाफ है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे सिंगल सैंपल पॉइंट था, तो 2 करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टीएस पहले जो था टीएस अपन 2 करना होगा, सो दैट मीन्स सैंपलिंग इंस्टेंट को हाफ कर दिया, सो पहले 1 था, 1/2, सो दैट मीन्स 0.5 सेकेंड हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया, सो 0.5 सेकेंड हो गया, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी भी तुमको निकालनी है, टीएस Yes, से sir. एफएस तुमको निकालनी है, सो एफएस इज इक्वल टू 1/ts, करेक्ट? Yes. सो टीएस कितना हो गया ना राइट नाउ, 0.5 सेकेंड, इजंट 1/0.5 तुमको करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एफएस कितना हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, 2 hertz, sir. 0.5 2 हर्ट्ज हो गया, सो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, देखो दिमाग पे घुसा, एवरीवन आई एम गिविंग यू द ट्रिक्स, डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं, बोई में किताब में एवरीथिंग Sir. रिटन हुआ है, तो एफएस 2 हर्ट्ज हो सर गया। 2 है सर, हाँ, सर हम भी तो 2 ही बोले थे। एफएस 2 हर्ट्ज, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था टीएस जब 1 सेकेंड होगा, टीएस जब 1 सेकेंड होगा तो अब कितना सैंपल मिलेगा, 2 कब होगा, टीएस जब 0.5 सेकेंड, तो 2 सैंपल पॉइंट होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये 0 है, 0.5 इधर है, तो यहाँ पे एक सैंपल वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे एक सैंपल वैल्यू मिलेगा, सो जब तुम्हारा एफएस 2 हर्ट्ज हो गया और मान लो सैंपलिंग इंस्टेंट 0.5 हो गया, तो ये 1 हर्ट्ज सिग्नल, तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 हर्ट्ज, करेक्ट? तुम्हारा सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल का